Yes. Very good morning to all of you. Good morning, Good Khush. morning, ma'am. Good morning. How are you, Good Khushbu? morning, ma'am. I'm fine, ma'am. How are you? I'm also fine. So, first of all, thank you so much for joining. It's my pleasure, ma'am. Okay, that's great. And how's everything going, Khushbu? Quite well, ma'am, as of now. Currently, I'm teaching at a college here as a guest lecturer, and alongside, I'm preparing for PhD or MTech, whatever I can get into. Okay, that's so nice. And what about COVID at your place? Like, Luckily, ma'am, my district is somewhat safe. अभी तक उतने cases आए नहीं हैं, but I know that eventually our district is going to catch up as well. mhm. The chief minister of our state has said that he hasn't planned any lockdown or curfew for our state. Okay. For so yeah, ma'am. Where are you now in Delhi? I'm not in Delhi. I'm currently in Rajasthan. It's in Bhiwadi. There also, I've heard that the situation is it's getting worse. The situation in Yeah, Rajasthan. I say everywhere situation is getting worse, but thankfully, currently Hmm. where I'm living, it's like in a safe zone. No, no much cases are there. Okay. Yeah. Okay. Okay. So we have another participants also. We have Manisha. Okay, Manisha, ma'am. can you hear me? Very good morning to you. Manisha, are you there? Okay. I guess some network issue maybe. I can't hear her. Manisha. Okay. uh, Redmi Note 9 Pro. Okay, let's wait for all other participants also, Khushbu, so that eventually it Sure, will. ma'am. Yeah, yeah. Yes. Manisha, can you hear me? Manisha, can you hear me? I get some network issue, maybe. Yes. So, welcome to all the participants. Manisha, Khushbu, Sachin, Redmi Note 9 Pro. What's your name? Redmi Note 9 Pro. What's your name? Redmi Note 9 Pro. Can you hear me? I guess still some network issues there. Sachin, very good morning. Sachin, are you there? I can only hear Kushbu and no one else. Yes, There every. seems to be a network problem, maybe. Yeah. Great, you're great. Manisha, can you hear me? Please tell me. Okay, every one of you. I'm audible and visible. Your network issues okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Redmi Note 9 Pro. What's your name?
Ma'am, Divya. Divya. Okay, you are Divya. Okay. I guess. Yes, ma'am. Divu is Divya. Yes, ma'am. Divu is my real name is Divya. Okay, okay, okay. Your real name is Divya. Yes, ma'am. Okay, so nice. So I guess every one of you can hear me properly. And Divya, Manisha, Khushbu, Pooja, and Sachin. So guys, देखिए as you first of all thank you so much for this initiative कि आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया एंड अगेन जो है क्यों ये हमने किया है या क्यों हम करना चाह रहे हैं ये सब चीजें इसके पीछे एक रीजन है कि अगर हम ICAR एग्जाम की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में बिकॉज कोई क्लियर कट लाइक आइडिया हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं मिलता है so that is a main issue तो just to help you आप लोगों से ग्रेट मेंटर्स आई गेस कोई हो नहीं सकता क्योंकि आप लोगों ने वो सब चीजें एक्सपीरियंस की है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से आप अपने बारे में कुछ बताएं एंड आपने लाइक जो एग्जाम है कौन सी स्पेशलाइजेशन में क्लियर किया है सिर्फ इतना एंड करंटली व्हाट यू आर डूइंग सो हम स्टार्ट करते हैं खुशबू से Good morning, everyone. My name is Khushbu Agarwal and I am from Assam. I completed my master's in the subject botany. After that, I appeared for the ICAR examination last year in September for the paper Economic Botany and Plant Genetic Resources. And I cleared that when the result was out in November. okay that's so nice and currently you are teaching Yes, ma'am. I'm teaching botany. okay so nice that's great okay over to Manisha गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं असम से हूँ एंड मैंने ICAR नेट सितंबर में क्लियर किया था और मैंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में ICAR नेट का फॉर्म फिल किया था और करंटली मैं अभी CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ पहले मैं प्रोजेक्ट में थी CSIR लैब में बट अभी प्रोजेक्ट टेन्योर खत्म हो गया है तो मैं अभी घर पे ही हूँ okay and what is your like field of specialization ICAR net में कौन सी फील्ड में बताया आपने मैम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी okay so many doubts are there from this stream also okay over to Divya I request Good morning, everyone. yeah I And good morning, ma'am. Khushbu and Manisha please mute yourself Okay, ओके ma'am. मैम yeah Divya Good morning, everyone. And good morning, ma'am. मैम मैंने मेरा मेरा ICAR नेट हॉर्टिकल्चर में क्लियर किया है और मैं हरियाणा से हूँ और CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ okay हरियाणा में कहाँ से दिव्या मैम हरियाणा में जींद जी okay so nice हाँ जी great हाँ great जी great great हाँ जी and currently आप थैंक नेट यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हाँ जी मैम CSIR नेट से की प्रिपरेशन कर रही हूँ अनअकैडमी से okay great okay what हाँ about जी yeah thank you so much Divya please mute हाँ yourself जी Pooja ओके मैम over to Pooja Yes, good morning, everyone. Good morning, ma'am. good morning My name is Pooja and I am from Pune. okay I did my master's in biochemistry in 2017 और अभी मैंने मैम 2020 में क्लियर किया ICAR एग्जाम okay आपको बहुत फॉलो किया आपके छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शंस थे उन सबको मैंने फॉलो किया सो दैट्स व्हाई मैंने क्लियर कर लिया नाउ good कौन सी फील्ड में आपने क्लियर किया है पूजा मैम प्लांट बायोकेमिस्ट्री plant बायोकेमिस्ट्री okay great Sachin can you hear me over to you Sachin Yes, ma'am. yeah Yes, ma'am. Yes, Sachin, ma'am. please speak up Good morning, ma'am. very good morning how are you Good, ma'am. great Yeah. तो मैम मेरा मास्टर्स MSc मतलब माइक्रोबायोलॉजी में है और मैंने लास्ट ईयर ही क्वालिफाई किया है ICAR ने तो
कौन सी स्ट्रीम मतलब धीरे धीरे सब कौन मैंने सी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में किया है। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो नाइस। आप लोगों से तो आई गेस बेस्ट मेंटर फिर कोई हो ही नहीं सकता है, जो इतना ज्यादा लाइक इतनी अच्छी अच्छी फील्ड्स में आप लोगों ने पेपर क्लियर किया है, दैट्स सो नाइस। अभी देखिए कुछ लाइक क्वेश्चंस हैं, तो हम डायरेक्टली उनको लेते हैं। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं पर्सनली, आई गेस वो सॉल्व हो जाएंगे या वो आप आंसर कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक ऑल ओवर इंडिया, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड आई जस्ट वांट कि आप सब इस पर अपना अपना व्यू रखें, that can we enroll for PhD after qualifying ICAR net? Yes, Khushbu, what are your views regarding that? PhD का क्या कोई स्कोप रहता है एग्जाम क्लियर करने के बाद? मैम मैंने जैसे कि पिछली बार दिया था, तो दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द JRF पोस्ट। तो ऐसा था कि आफ्टर क्लियरिंग माय एग्जाम मैंने अगर कहीं पे अप्लाई किया PhD के लिए, इफ एवरीबॉडी, इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी कि मेरा फेलोशिप है ICAR से। So I think, yeah, definitely the students can go for PhD as long as the institute that they are applying in considers ICAR fellowship also. There are many institutes जहाँ पे, especially state universities I would say, जहाँ पे ICAR अभी भी consider नहीं करते हैं fellowship वहाँ का, but other than that central universities और बाकी जितने भी CSIR के labs है और बाकी जो भी research institutes है हमारे country में, most of them consider ICAR fellowship, so I think definitely they can go for PhD. Okay. So that's a big thumbs up. Like, this is a common question कि बिल्कुल PhD जो है after qualifying ICAR net, if you are interested in somewhat like plant related or botany related things, या course specialization में आप जाना चाहते हो, तो you can definitely go for PhD. Definitely, ma'am. And yeah, scholarship is also there. या मैम, और कितनी बार होता है कि इन द एडवर्टाइजमेंट आल्सो फॉर द पोस्ट वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, अलोंग विद CSIR नेट दे आल्सो कंसीडर ICAMR और ICAR JRF आल्सो। Okay, that's so nice. And what's the stipend for that? Is that equal to CSIR or somewhat different? No, ma'am, it's more or less similar to CSIR. I think it's 31 for the first 2 years and then it increases. Gradually increase. Okay. That's so nice, Kushbu. Thank you so much for answering the question. And Thank you, ma'am. okay, second question is from a student basically, and he's asking, I'm a botany MSc student, and मुझे बहुत ज़्यादा confusion है regarding syllabus, and there are so many disciplines जो वेबसाइट पर दिए हुए हैं, I guess approximately 51 disciplines हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जो है ऑप्ट करना है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल, अरुणिमा, बॉटनी MSc स्टूडेंट, नो स्पेशलाइजेशन, ओनली बॉटनी MSc स्टूडेंट, तो वो कहाँ अप्लाई कर सकती हैं? यस, पूजा, क्या आप बता सकती हैं, कोई भी आइडिया दे सकती हैं इस रिगार्ड में, बताइए। मैम अप्लाई कर सकते हैं, बट वो क्लियर करने के बाद नेट क्वालिफाई, अगर उनका ICAR जैसे नेट क्लियर हो जाता है तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग द सिलेबस, जैसे अभी मैंने प्लांट बायोकेमिस्ट्री किया है, तो मैम जैसे कि हमें बायोकेमिस्ट्री और प्लांट्स के बारे में अगर हम वो दो कर लेते हैं रिगार्डिंग, तो ऑल द सिलेबस की हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर जैसे हम इम्पोर्टेंट थिंग्स कर लेते हैं तो वो हमारे इजीली क्लियर हो जाता है। तो अगर उनका क्लियर हो जाता है तो वो लैब में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने जहाँ भी वैकेंसीज होती हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay. So what actually the question is कि simply अरुणिमा ने MSc बॉटनी किया हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकती है? दैट इज व्हाट शी इज आस्किंग। सो एनीवन जो आंसर करे जिसका सिमिलर बैकग्राउंड रहा हो। Ma'am, can I answer this? Yeah, sure, Kushbu. Ma'am, because this is exactly the same problem that I faced last time, since my master's is also in botany.
no Okay. specialization, nothing. So Okay. what I did was, first of all, I went to the ICAR website and I downloaded the information brochure. After downloading that, there was a table. I don't know whether it's there or not this time, since I didn't check it this time. It should be there. Last time when I downloaded that information thing, there was a table there जहाँ पे उन्होंने specifically mention कर दिया है कि कौन से पेपर के लिए उन्हें MSc कौन से सब्जेक्ट से चाहिए और कौन से ड्यूरेशन वाले चाहिए. लाइक उनको 3+2 years वाला कोर्स चाहिए कि 3 साल का BSc हो और 2 साल का MSc हो, या उनको इंटीग्रेटेड MSc वाले बच्चे चाहिए. तो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए जितना भी सब्जेक्ट है 50 और 60, for each and every subject they have mentioned the subject specialization for masters which they require, as well as the number of years which they need. तो मैंने जब लास्ट ईयर देखा था तो फॉर बॉटनी स्पेसिफिकली सिर्फ, और मेरा 3+2 year का ड्यूरेशन था, 3 years BSc 2 years MSc. तो इस क्राइटेरिया के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था विच वाज इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो मैंने ऑप्ट किया. Okay. इस बार मैंने एक बार देखा टेबल को जो उन्होंने रिवाइज किया है इस साल के लिए. अकॉर्डिंग टू दैट मैंने जो देखा, MSc बॉटनी के लिए इस बार ऑप्शंस इंक्रीज हो गए हैं. पिछली बार जैसे कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो मैंने दिया, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक. बट एज फार एज आई नो, वो वापस चेक कर सकती है, बट एज फार एज आई नो इस बार ऑप्शंस बढ़ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इस बार एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पेपर के लिए भी दे आर कंसिडरिंग MSc बॉटनी स्टूडेंट्स, not just people who have agriculture as their background. Even the simple botany students can also opt for it, as well as economic botany तो इस बार भी है ही. So if she goes through that table once, she can understand which subject she needs to choose, which paper she needs to choose for her exam. That is the first thing. And second, I think she asked about the syllabus. तो अगर वो for example मैंने जैसे economic botany लिया, she can download the syllabus. Everything is available on their website. The syllabus is available there. She can download the syllabus. तो जो एग्जाम होता है उसका ऐसा पैटर्न होता है कि 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी पेपर. उसमें जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टफ एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन. सो पार्ट ए इज कॉमन. पार्ट बी में होता है कि देयर विल बी 3 सब्जेक्ट्स दैट शी नीड्स टू स्टडी. फॉर एग्जाम्पल हमारे इकोनॉमिक बॉटनी के लिए भी 3 सब्जेक्ट्स थे विच वी हैड टू स्टडी फॉर द पार्ट बी. एंड फॉर पार्ट सी उस 3 में से एक सब्जेक्ट को और इलेबोरेटली पढ़ना पड़ता है. So that is the syllabus. Part A is common. Part B में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और Part C में उस 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को इलेबोरेटली पढ़ना होता है, which is clearly mentioned in the syllabus. So this is the syllabus criteria. So if she goes through the information once, she will know which paper she has to select for the exam. And if she goes through the syllabus once, she'll know how it works. Part A is common, and then Part B and C, they'll have it mentioned. According with the syllabus, they have to prepare. Pattern is common, A, B, C, and syllabus is different. Yeah. Obviously. Different for each subject. Yeah, thank you so much, Kushbu, for answering this question with so much clear-cut idea, because most of the students का यही issue है कि मेरी specialization ये है तो मैं किस subject में apply करूँ. So there's a particular table on the website itself जिसको वो as a reference मान के जो है they can see and can apply. ऐसा नहीं है कि कोई किसी में भी apply कर सकता है. It's not like that. नहीं. You have to consider the things and apply accordingly. Okay. Now we will move to Manisha. Manisha, particularly. Yes, ma'am. Your field is agriculture microbiology, right? Biotechnology. Biotechnology. Okay, sorry. कुछ questions जो हैं वो book से relevant भी है. क्या कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं जो हमें पार्ट ए, बी, सी के लिए फॉलो करनी चाहिए? एनी सॉर्ट ऑफ बुक? मैम मैंने पाथफाइंडर किया था और बाकी अनअकैडमी से आपके लेक्चर्स किए थे. जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस. तो मैंने आपके सारे वीडियोस देखे थे, तो वहां से मेरे सारे क्लियर हो गए थे मैम. जो आपने करवाया था वो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं.
लाइक मतलब इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है। इतना टफ बाकी जैसे खुशबू ने बताया नहीं। कि पार्ट सी में इलेबोरेट आते हैं, तो पार्ट सी में जैसे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिलेक्ट किया था, तो उसी से मेरा हो गया था मैम। बाकी बुक्स मैम मैंने पाथफाइंडर ही बस फॉलो किया था। नो स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड बुक्स आपने फॉलो नहीं की है एंड जस्ट नो, लाइक द बेसिक। ओके ओके। एज वी नो दैट आप लोगों की कुछ अलग अलग फील्ड्स भी हैं, सो व्हाट अबाउट दिव्या? दिव्या, आपका हॉर्टिकल्चर, राइट? हॉर्टिकल्चर आपने यस मैम। तो आप बताइए यस मैम। कि क्या आपका लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा एंड कौन सी बुक्स आपने स्पेसिफिकली फॉलो की? कैन यू प्लीज टेल मी? मैम या हाँ जी मैम। मैम वो जो मेरा बीएससी ग्रेजुएशन था, एक्चुअली मेरी एमएससी बॉटनी से ही है। मेरा जो बेसिक क्लियर था मेरा उन्हीं से ही क्लियर हो गया मैम। जो मैंने बुक्स अपनी ग्रेजुएशन में रीड की थी और एमएससी में की थी, उन्हीं से मैम मेरा बेस क्लियर था, तो उसी वजह से मैम मेरा क्लियर हो गया। okay 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 so no हाँ जी specific book is there नो मैम। जो नो आपने मैम। follow की? okay okay मतलब नो। basics हाँ जी। basics basics okay always यस मैम, बेसिक्स बेसिक्स पे काम करो मैम। okay okay great हाँ जी। Pooja हाँ जी। yeah over to Pooja Sharma. Pooja Sharma, there are so many students who are preparing for plant biochemistry जो आपका फील्ड है। नेहा ने भी क्वेश्चन पूछा है, सो प्लीज बताइए क्या कोई स्पेसिफिक बुक आपने फॉलो की थी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी? मैम मैंने पाथफाइंडर को फॉलो किया ओके और आपके जो प्री लेक्चर्स थे मैंने उनको भी फॉलो किया। आपने काफी अच्छे से डिटेल में बताया कि विद डायग्राम के साथ हम इसे लर्न कर सकते हैं, तो मैंने वो सारी चीजें फॉलो करते हुए से किया। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है मैम, एक पाथफाइंडर बहुत बेस्ट बुक है या जिसमें हमारी पूरी डिटेल्स आ जाती है, टेक्निक्स भी हो गई हमारी, वो भी उससे कंप्लीट हो जाती है। ओके 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 कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है अकॉर्डिंग टू यू आल्सो? पाथफाइंडर से मैम कंप्लीट हो सकता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है उससे सिलेबस। ओके ओके सो और ऑल भी हमें बुक्स की व्हाट जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपका बेसिक अच्छा है एंड एक व्हाट शुड आई से कि लाइक एक बेसिक लेवल पर भी नॉलेज है, देन आल्सो बहुत आराम से आप यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। बहुत ज्यादा डीप स्टैंडर्ड बुक में मूव करने की जरूरत नहीं है। ओके यस मैम। yeah, thank you so much Pooja for answering. What about Sachin, आपकी फील्ड के हिसाब से आपने कुछ स्पेशल फॉलो किया या क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही, बताइए। हम बेसिकली जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम आरसी दुबे पढ़ते हैं। दुबे एंड महेश्वरी काफ़ी अच्छी बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और आई थिंक मैंने उसको बस रिवाइज ही करा था क्योंकि एमएससी में पढ़ते हैं हम लोग। और मैंने मैम ओनली 1 हफ्ता दिया था आईसीआर के लिए, तो सही बताऊँ तो। और ओके 1 हफ्ते में मैंने आरसी दुबे रिवाइज करी, जो जो मुझे टॉपिक लगे थे कि ये इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, तो उसके आई थिंक 500-600 क्वेश्चन होते हैं मैम, बेसिक होते हैं, और उसमें आप आराम से कर सकते हैं। आपने एक बार वो बुक कर ली तो आपके कम से कम माइक्रोबायोलॉजी में 25 से 30 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, और ज़्यादा एंट्रेंस हार्ड नहीं आता जैसे इन लोगों ने बताया। बहुत ही बेसिक, अगर आपकी बेसिक नॉलेज ठीक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक। एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था मैम कि होता है ना AFLP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैम इसमें। ओके ओके सो मतलब बहुत हार्डकोर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके दैट्स सो नाइस। सो सभी, खुशबू, यू वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग बुक्स और समथिंग द लेवल ऑफ पेपर? Khushbu, can you please unmute yourself? Unmute yourself, Khushbu. Oh. Yeah. Yes, ma'am. If the student is going for economic, botany and plant genetic resources, botany related I guess जितने भी questions आते हैं बहुत ही basic होते हैं, like everyone said, आराम से attempt कर सकते हैं, but there are 2 subjects which are a little off field, something which we have not studied before, purely agriculture based. तो उसके लिए मैम मैंने एक book refer किया था, I'm showing this here, I don't know if it's visible. It's called क्वेश्चन बैंक, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 राइटर की बुक है,
ऑरेंज एंड ग्रे कलर की अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। आई गेस दिस रियली हेल्प मी। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और इससे आई गेस मुझे काफी क्वेश्चन कॉमन मिले, क्योंकि फॉर अ बॉटनी स्टूडेंट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फील्ड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं होता है एमएससी तक। तो to get the basics of agriculture, this book really helped me a lot. I got to know a lot of different topics, completely purely agriculture based. I got to solve a lot of questions with the help of this book. I would definitely recommend this book to anybody who is opting for economic botany and plant genetic resource, जो कि botany background का है लेकिन agriculture based अगर वो exam दे रहा है, अगर उसका previously agriculture background नहीं था, तो I would definitely recommend this book. Okay. Thank you so much, Pooja, for answering. अब एक क्वेश्चन जो और कॉमन है, दैट इज कि लाइक ARS net pre and mains regarding subject part. I guess that is different from ICR net. थोड़ा सा अलग है ICR net के से कंपेयर करें, पर जहाँ तक मुझे पता है शायद साइंटिस्ट पोस्ट के लिए होता है। Any idea anyone regarding that? Like pre or mains, थोड़ा सा लेवल भी टफ होता है, pre mains then interview. कुछ स्पेसिफिक कोई बुक, कोई पैटर्न, एनीथिंग यू वांट टू से, एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई आइडिया है तो प्लीज बताइए। एनीवन? मैम 2019 में मैंने दिया था ARSB नेट, तो मेरा 2.5 नंबर से रह गया उस टाइम पे। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से दिया था और मतलब आपका क्लियर था, मेंस रह गया, इज दैट सो? यस मैम। तो मैम उसमें एक्चुअली क्या बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैम, ज़्यादा कुछ जैसे आपका ICR का पैटर्न होता है सेम ही ARSB का होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। मतलब अगर आपने RC दुबे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली तो इनफ है। ऐसे ही अपना बायो जैसे बायोटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे BD सिंह पढ़ सकते हैं, BD सिंह बायोटेक्नोलॉजी, वो भी अच्छी बुक है। तो मैम अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आराम से, चाहे ICR हो चाहे ARSB नेट हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। हो थोड़ा बहुत लाइक अपनी रेफरेंस बुक, जो आपकी फील्ड की रेफरेंस बुक सबको पता होता है, हमारे फील्ड की रेफरेंस बुक स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आई गेस यहाँ पर इस बार तो बहुत टाइम मिलने वाला है, तो आराम से जो है कोई भी क्लियर कर सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो होपफुली, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड मेंस? क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस होता है सचिन, या फिर लाइक सेम ही होता है कुछ? एनी सॉर्ट ऑफ मेजर डिफरेंस प्री एंड मेंस? प्री तो काफी इजी आता है, और फिर जब आप मेन में जाते हैं तो मेन में क्या होता है कि थोड़ा लेवल जो है वो हाई हो जाता है। ओके, हाई हो जाता है थोड़ा सा लेवल। ओके, मतलब डिफरेंस इज देयर। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके मैम, कैन आई से? श्योर मनीषा। मैम, यस मैम, प्री में जैसे MCQ टाइप्स आते हैं और मेंस में उसी का ही डिटेल्स क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में आता है। आपको यस ओके मेंस राइट, यस मैम। और बाकी रिलेवेंट, जैसे मेरा फील्ड बायोटेक्नोलॉजी था तो मैं तो आप ही के नोट्स फॉलो करती हूँ और बुक्स पाथफाइंडर और जैसे बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर से फॉलो किया था मैंने, तो उसी से क्लियर हो जाता है मैम जो रेफरेंस बुक्स है। आपका ARS भी क्लियर है? नहीं मैम, नो मैम, इस बार मैं दूंगी। ओके, फॉर श्योर, वेरी गुड लक फॉर दैट। ओके, थैंक यू मैम। Yeah. So most of the questions are regarding like books and pattern that already you guys answer. Okay. After qualifying ICR NET, can we teach as an assistant professor in any agriculture university? We will get JRF, we definitely, और enroll कर सकते हैं। Okay. मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कंफ्यूज हैं उसका आंसर लाइक बहुत अच्छे से आप लोगों ने दे दिया है कि हमारी फील्ड ये है, हमें पता ही नहीं है कि किस फील्ड में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा लाइक सीधा नहीं दे रखा है उन लोगों ने, तो आई गेस वो टेबल उनको मिल जाएगी तो उनको पता चल जाएगा। ओके,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को है, जैसे हमें पता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स है उनके PYQs जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ICAR नेट का ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बच्चों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कैसे वो प्रैक्टिस करें, एक एक करके आप लोगों से जानते हैं कि आपने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या, कैन यू हियर मी, प्लीज टेल मी आपने कहाँ से यस मैम, यस मैम। या मैम एक्चुअली मैंने यूट्यूब से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, मतलब जो भी उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने उन्हीं को प्रिपेयर किया था। मैंने भी 1 हफ्ता पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 1 हफ्ते में ही मैंने क्लियर कर दिया था। लोग तो बहुत बड़े रॉक स्टार्स हो, एक एक हफ्ते में आप लोग नेशनल लेवल के पेपर क्लियर कर दिए हो तो नहीं नहीं मैम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इनमें। ओके 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 देवया, हाँ थैंक जी, यू थैंक हाँ यू। जी। What ओके। about Khushbu? Any specific book for practice? आपने तो खैर बताया ही खुशबू। Apart from that, anything else? मैम गूगल पे तो कुछ भी नहीं मिला, बट इफ द स्टूडेंट टाइप्स द सब्जेक्ट नेम ऑन यूट्यूब एंड राइट्स ICAR अलोंग विद इट, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस, मतलब मैंने देखे, अनलिमिटेड वीडियोस उनको मिलेंगे यूट्यूब पे। प्लस उनको ये बुक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड इफ द स्टूडेंट स्किप्स यूट्यूब बट जस्ट गोज फॉर दिस क्वेश्चन बैंक, मुझे ऑनेस्टली मैम this question bank helped me a lot. So if somebody has to go for my opinion, my suggestion, I would suggest कि YouTube से भी ज्यादा if the student just takes this book और इस book पे invest करे हर दिन, even if for 2 hours, it's more than enough. इधर उनको concept as well as questions मिल जाएंगे। Definitely previous year questions नहीं है ये, लेकिन more or less इसी type के ही questions आते हैं। Okay, okay, means reframing कह सकते हो या एक तरीके से यही concept। Yes ma'am, exactly, Okay, 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 exactly. okay. Thank you so much, Khushbu. What about Pooja? Pooja, any specific? यस मैम, मैंने भी यूट्यूब से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। Okay, और जैसे मैंने एक पाथफाइंडर से एक टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे प्लांट के हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए, तो मैंने गूगल पे MCQ ऑन प्लांट्स हार्मोन, तो उसके बेसिस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया, जिससे मेरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, क्योंकि ICAR नेट में मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई अच्छी। okay, okay. What about Manisha? Manisha, आपने कुछ specific follow किया? हाँ मैम, मैंने IIT जेम के बायोटेक्नोलॉजी की बुक थी, वहां से MCQ फॉलो किया। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली बुक। Okay, 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 okay. Thank you so ये much. मैम, और JNU के एक MSc बायोटेक्नोलॉजी बुक, MSc के टाइम में मैंने ये फॉलो किया था, तो उसी में से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। बहुत सारे क्वेश्चंस है मैम MCQ के लिए, तो यहाँ से प्रैक्टिस हो जाते हैं। और रिगार्डिंग जैसे बायोकेमिस्ट्री के जो सम है, जो ग्राफ है, वो यहाँ से हो जाते थे मैम, तो Okay. मैंने यहाँ से कर लिया। और बाकी आपके नोट्स फॉलो किए, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे अन अकेडमी में, वहां से भी किया मैम, गुरुमंत्र चैनल से भी किया मैम, तो वहां से हो गया था मैम। Okay, Manisha. Great, great. What about Thank Sachin? Sachin? हेलो मैम। Yes. मैम जैसे मैंने बताया कि जो मैंने भी देखा था वो मेरी PDF में पड़ी है, एक फाइल जो MCQ के लिए है। वो विद्यासागर हैं जो पूषा की रिसर्च मतलब साइंटिस्ट हैं, तो वो आई थिंक 500-600 क्वेश्चन हैं और माइक्रोबायोलॉजी के लिए काफ़ी हैं, इनफ हैं। और मैम रही बात अदर सब्जेक्ट की, जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी हुआ, टेक्निक हुआ, तो आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, वो आराम से ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चे। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी जो सब्जेक्ट है उसमें नॉलेज बढ़ानी है। अगर आपका सब्जेक्ट बढ़िया है तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और आराम से रही qualify। बात टेक्निक की, मोलिकुलर बायोलॉजी की, तो वो आप क्लियर करा देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, तो अब मैं बच्चों के तो क्वेश्चंस मेनली यही थे जो लर्नर्स ने पूछा था, पैटर्न को लेकर इशू था। हमारी फील्ड ये है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हम किसमें अप्लाई करें, एक क्वेश्चन ये था जिसका स्पेसिफिक टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप उसको रेफर कर सकते हो और अपना अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, अगर लेवल ऑफ पेपर के बारे में बात करें तो आप सभी ये अग्री करते हैं
कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है। पीएचडी में डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, एंड करो जब आपका कोर इंटरेस्ट हो, क्योंकि तभी वो लंबे समय तक आप परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्या जेआरएफ स्टाइपेंड मिलता है? तो बिल्कुल स्टाइपेंड इज देयर, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर थिंग। नेक्स्ट, पैटर्न के बारे में बात हुई, सिलेबस आप डाउनलोड कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट व्हाट आई एम लाइक, अब आपके बेसिक एक्सपीरियंस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका जो भी जर्नी रहा, वैसे काफी कम ड्यूरेशन में आप लोगों ने कुछ कह रहे हैं सचिन एंड दिव्या की 1 वीक में कि द थिंग इज दैट, बट 1 वीक तो कहने की बात होती है, बेसिक तो पहले से ही स्ट्रांग होता है। कभी ना कभी तो इन्होंने मेहनत की है इतनी कि इन्होंने पेपर फटाफट से निकाल लिया। अब चाहे वो कॉलेज में अच्छा इनपुट दिया हो, लाइफ टाइम में क्लासेस में कभी इनपुट दिया हो, पढ़ते समय कभी इनपुट दिया हो पहले, तभी अच्छे से वो कर पाए। लेकिन फिर भी एक व्हाट शुड आई से, गुरु मंत्र कह लीजिए या सक्सेस मंत्र कह लीजिए, वो हर किसी का होता है कि मैंने तो ये किया एंड ये चीज जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक टूल की तरह काम की, ये मेरा लाइक एक पॉजिटिव पॉइंट था जो मैंने किया। तो वो सब मैं जानना चाहती हूँ आपसे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या कोई एक ऐसी परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट चीज रही जो आपने अप्लाई की या आपने फॉलो की, एंड आज की डेट में आप इतने अच्छे रैंक होल्डर्स हैं सभी के सभी। दिव्या से शुरू करते हैं, दिव्या प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। मैम मैंने YouTube से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी वो मैंने बहुत ज्यादा कर ली थी, जितनी भी रिलेवेंट उनसे जो भी वीडियोस थी वो सारी मैंने देखी थी, और बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, तो उन्हीं से मैम हो गया था। प्रैक्टिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। ओके, ग्रेट। यस मैम। यस। दिव्या का यस। आपकी तरफ आप सबके लिए तो एक मंत्र हो गया, अनलिमिटेड प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, आराम से पेपर। यस। ओके, ओवर टू खुशबू। खुशबू, व्हाट यू से रिगार्ड टू दैट? मैम आई वुड से कि खुद का सब्जेक्ट तो मोर और लेस सबको आता है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता ही है। सो अलोंग विद दैट, अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि डेफिनेटली होगा ही आईसीआर एग्जाम में, जो कि नया है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था कि वापस कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है, इतने कम टाइम में उसको कवर करना पड़ रहा है। बट आई वुड से दैट अगर वो पार्ट क्लियर कर लिया बच्चे ने पढ़ पढ़ के, क्वेश्चंस चाहे सॉल्व कर रहा है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा है किसी बुक से, आई थिंक दैट इज द की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चंस ही खुद के पेपर के आएंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर फील्ड एज वेल। So if you have not studied the other subject, or if you have not even approached the other subject, then it's a little difficult, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के लिए completely उनका ही फील्ड का पेपर होता है, और बहुत स्टूडेंट्स के लिए नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ता है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जिनका बहुत ही क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है कि प्योर बॉटनी है या प्योर जूलॉजी है, कोई ऐसा नया फील्ड नहीं है। तो हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा ही, एग्रीकल्चर बेस्ड हो या फिर कुछ और बेस्ड हो। तो आई वुड से कि द की हियर वुड बी टू अप्रोच दैट न्यू सब्जेक्ट विद द सेम एंथुजियाज्म एंड टू नॉट लीव इट, यू नो, कि नया है छोड़ देते हैं, खुद का तो आता ही है उसी से निकाल लेंगे। इफ यू डू दैट देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ओके, मतलब कि ऐसा सोच नहीं रखना है कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो हम कंटिन्यू करें, एडिशनल कोई नया पार्ट उसकी तरफ भी फोकस करना ही करना है, एडिशनली दोनों चीजें मिलकर आपका पेपर क्लियर कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम। दैट्स अ नाइस स्टेप। व्हाट अबाउट पूजा? मैम जब भी हम सीएसआई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। ओके, तो सीएसआईआर एग्जाम बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है मैम, तो अगर जब भी हम उस एग्जाम को करते हैं तो पूरे बेसिक्स हमारे क्लियर होते हैं। तो अगर हम सीएसआईआर के लिए भी नहीं कर रहे, तो अगर जैसे हमने कोई टॉपिक उसे अच्छे से पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, तो हमारा वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। कि जैसे अभी कोई टॉपिक है हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या करते हैं, जैसे मैम आप क्वेश्चन कराते हो, उसको डिटेल में उसके बारे में बताते हो, तो हम क्या कर सकते हैं एज एमसीक्यू, मतलब थोड़ा सा आइडिया लेके उसको कर सकते हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मैम आईसीआर जस्ट बहुत सिंपल होता है, बस हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, 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 दैट्स सो नाइस। सो पूजा की इज दैट कि अलग अलग एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते रहो एंड लाइक बिल्कुल उससे हेल्प मिलेगा, ऐसे ही शायद आपने कुछ किया होगा पूजा, है ना?
and like botany or मैम biochemistry? CSIR एग्जाम की Sorry. प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो दैट्स Okay. CSIR एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है ना, Okay. सो Okay. मैम इसलिए बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए हैं। Okay. 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 Great. 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 What is the key for Sachin? Sachin, आपका कोई मूल मंत्र, कोई मंत्र वो छुपा हुआ कोई मंत्र आप देना चाहेंगे, शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ? मैम मंत्र तो यही है कि आपका डेडिकेशन लेवल हाई होना चाहिए और Okay. आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपने सेल्फ बिलीव है, यू कैन डू एवरीथिंग। तो मैम जर्नी तो काफ़ी रह चुकी है, मतलब सबकी अलग अलग ही होती है। तो मेरे पास कोई वो नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था पहले जब मैंने जैसे ही टीम में पास आउट किया था। तो आफ्टर MSc मैंने 6 महीने फार्मा कंपनी में जॉब करी थी, लेकिन लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर टिक पाऊंगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मतलब कह लो BSc MSc के बाद इंटरेस्ट था कि मैं रिसर्च में जाऊँ। तो फिर एक बार लगा था कि नहीं हो पाएगा। तो उस दिन के बाद मैंने फार्मा छोड़ दी, फिर एक CSI में प्रोजेक्ट के ज्वाइन किया है, अभी कर रहा हूँ मैं उसी में। तो उसमें टाइम बहुत मिल जाता है मेरे पढ़ने को, और सबसे इम्पोर्टेंट मैम यही है, फिलहाल तो टारगेट यही है कि CSIR हो जाए इस बार। और यही है मैम कि अगर आपका अगर आप CSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, तो तुम जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, ICR हो, गेट हो, कुछ भी हो, तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने BA 2020 में दोनों ही क्वालिफाई किए थे, गेट भी हुआ था मेरा और ICR भी हुआ था। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कि डेडिकेशन लेवल हाई हो, पैशन हो, तो वो चीज हो जाती है। आपने अपनी जॉब ही छोड़ दी Yes, ma'am. पैशन के लिए, तो इतना पैशन होना चाहिए Yes. अंदर से, चीजें होती हैं। तो दैट्स सो नाइस Yes, सचिन, दैट्स सो नाइस। तो मतलब आप सभी लोग Thank you, अगर CSR के साथ इसका लेवल कंपेयर करोगे ICAR का, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ICAR इज like very easy as compared to that of CSR. What you Yes, say? ma'am, right. Everyone. Yes, ma'am. Easy. Okay, great. Okay. मैम आई वुड से कि इजी डेफिनेटली होता है इन द सेंस कि क्लियर कट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो ट्रिकी पार्ट भी है कि अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ा ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो न्यूमेरिकल टाइप है या कुछ है कि थोड़ा दिमाग लगा के कर लोगे। इट्स क्लियर कट क्वेश्चन कि आपको अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट करने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसके वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आपको टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है। टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लगा के क्लियर कर लोगे या बेसिक नॉलेज लगा के CSR में करते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा कर लेते हैं या निकाल लेते हैं, बट यहाँ ऐसा वही नहीं होने वाला है। नहीं हो सकता है। यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो छोड़ना ही पड़ेगा। टू लीव इट, ऑलमोस्ट 30 to 40% वो एरिया भी रहता है जिस पर आपको Yes, फोकस ma'am. करना। ओके, सो दैट इज समवॉट CSI से जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि CSI में आप Yes. अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को, कर सकते हैं। यहाँ यू हैव टू आइदर अटेम्प्ट इट और लीव इट, दैट इज द केस। Yes. थैंक यू Yes, सो ma'am. मच खुशबू, थैंक यू सो मच। ओके, सो ओके, तो फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें कि बच्चे ने पेपर क्लियर कर लिया, आज की डेट में आप सभी के सभी पेपर को क्लियर करके अच्छे रैंक के साथ सर्टिफिकेट लेकर लाइक प्रेजेंट हो, व्हाट इज द बेनिफिट? क्या बेनिफिट आपको मिला? क्योंकि ये एक चीज है, बच्चा पेपर क्लियर कर रहा है, बच्चा पेपर देने जा रहा है, तैयारी कर रहा है, क्लियर कर रहा है, उसके बाद क्या? बताइए दिव्या, आपने पेपर क्लियर किया, उसके बाद लाइक आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या चेंज मिला? यस मैम, एक्चुअली अभी तो मैं कहीं वर्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैम रिसर्च में मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं मैम। रिसर्च लेवल में तो जहां भी मैं गई हूँ मैम, मेरे को यही बोला गया है आप CSIR क्लियर कीजिए, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है ICR में, और हाँ हम आपको ले भी लेंगे, लेकिन आपका वही फिर CSIR रह जाएगा, आप पहले अच्छे से PhD ज्वाइन कीजिए। ओके, मतलब एक प्रेफरेंस Yes, ma'am. होती है दिव्या। अच्छा, यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू दिव्या। व्हाट अबाउट खुशबू? Yes. आपके पास ICAR नेट है बहुत अच्छी रैंक के साथ, क्या पावर देता है खुशबू आपको वो कुछ स्पेसिफिक चीज जो आपको मिली हो एग्जाम से? आपने इतनी मेहनत मैम किया। मैम लाइक दिव्या सेड, एक तो आप
कहीं पे भी JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो, PhD पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल एज वेल एज यू गेट द स्टाइपेंड मंथली। तो Okay. वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। Along with that, ICAR नेट अगर आपका है तो you are also eligible to apply for the post of assistant professor in your state. Okay, just like you are working as a guest lecturer, right? So Yes, ma'am. आपने- But that was not through. Yes, ma'am. yeah, please continue. Ma'am, the job that I'm currently doing, I didn't get that on the basis of ICAR. The thing is कि अभी तक यहाँ हमारे स्टेट में कोई पोस्ट निकला ही नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट इफ एंड व्हेन पोस्ट निकलेगा, मेरा अगर CSIR नेट नहीं भी हो, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई क्योंकि मेरा ICAR नेट है। तो द बेनिफिट्स आर मोर और लेस सिमिलर टू CSIR। लेकिन बस यही है कि सबका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अगर एक ICAR का कैंडिडेट है और अगर एक CSIR का कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली दे विल प्रिफर द CSIR कैंडिडेट, बट अदर देन दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ PhD position as well as assistant professor position. Okay, okay, on the basis of this exam. Yes, ma'am. Okay, what about Sachin? मैम जैसे इन दोनों ने बताया कि मतलब एलिजिबल तो हैं ही हैं हम लोग। और ये है कि मैम जैसे जो भी नेट गेट या जो भी होते हैं एग्ज़ाम, तो इसमें अगर आपका इंटरव्यू देने जाते हो प्रोजेक्ट के लिए या किसी JRF पोस्ट के लिए, निकलती रहती है मैम बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि एक अगर जो आपका कंपटीशन लेवल है वो हम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे 100 स्टूडेंट आए तो उसमें से 2 या 4 का होता है बेसिकली। तो प्रेफरेंस भी मिलेगी आपको और आपके पास वो भी है, तो आपकी जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं सिलेक्शन होने के लिए उनमें। Selection के तो chances. यही है मैम। Okay, यस मैम। okay, okay. What about Manisha? मैम जैसे खुशबू ने बताया, हमारे स्टेट में अभी कोई ऐसे वैकेंट पोस्ट नहीं निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हम एलिजिबल है। बट जैसे मैंने मैम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे स्टेट में, तेजपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ का इंटरव्यू, हाँ वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। तो गाइड ने मुझसे भी यही सवाल पूछा कि आपका CSIR क्लियर है कि नहीं। तो उनका माइंडसेट यही है। बट वहाँ पे मैं मेंशन था कि आप ICAR गेट एंड CSIR के थ्रू आप PhD एनरोल कर सकते हैं। बट उन्होंने मुझे एट लास्ट यही क्वेश्चन राइज किया था कि आपका CSIR क्लियर है कि नहीं। तो मैम इसी माइंडसेट उन्होंने नहीं लिया। बट हम हाँ अगर हम PhD में नहीं मतलब एनरोल नहीं हो पा रहे तो हम प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हम एज ए प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर के बाद हम उसी प्रोजेक्ट में से PhD में एनरोल कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। Okay, okay, okay. यस मैम। Okay, so we have a new participant with us, Bhumi Javia. Welcome, Bhumi. Can you hear me? Very, very good morning. Welcome to the meetup, ICAR Net Mentors meetup. Bhumi, can you please introduce? Yes, madam. Very good morning to all of you. Yeah, Bhumi. I'm audible? Yeah, you are audible. I request Yes. if you are comfortable, please video be on if you are comfortable. Otherwise, that is fine. Please introduce yourself, Bhumi. Yes, madam. I'm Bhumi Chak, and I'm doing my PhD, and I have completed MSc Microbiology. Okay, you are doing your PhD in what field? Sorry. कौन सी फील्ड में आप कर रहे हैं? कौन सा स्पेशलाइजेशन? Yes, life science field. Life sciences. Okay, and where are? Okay. And what's your ICAR net rank? Rank तो नहीं है मैम, but 63% आया था मुझे। Okay, Bhumi. कौन सी फील्ड में? कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड? Agriculture microbiology. Okay, we have so many students from agriculture microbiology. That's so nice. तो भूमि, आप कुछ अपना स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे? आपने क्या फॉलो किया, क्या बुक फॉलो किया, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? यस मैम, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में इजी होता है बायोटेक के कंपैरिजन में। एंड मैंने जो फॉलो किया था वो बेसिक्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रेफरेंस बुक पेल्जर एंड प्रेस्कॉट। Okay, Prescott. Okay.
स्टैंडर्ड बुक्स आपने फॉलो की एंड Yes. व्हाट अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक चीज फॉलो की? No, ma'am. नो, ओके, बस पढ़ा और जाकर पेपर दे दिया फटाफट से, क्लियर हो Yes, ma'am. बहुत easy था पेपर. गया, बहुत इजी था। ओके, दैट इज अ कॉमन बेसिक्स क्लियर होता है तो प्रिपरेशन की कोई नीड नहीं. बेसिक्स क्लियर है तो प्रिपरेशन का बहुत कोर का कोई नीड नहीं। ओके, ग्रेट Yes. भूमि, ग्रेट। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भूमि। Thank you, लास्ट ma'am. क्वेश्चन एवरीवन ऑफ यू, टू एवरीवन ऑफ यू। अभी आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर का पहले थोड़ा सा नीचे गया था ट्रेंड काफी समय से, लाइक अप डाउन होता रहता है चीजें। लाइक 2020 के बाद भी हमने देखा कुछ फील्ड बहुत ऊपर रहे हैं जो पहले थोड़ा सा नीचे थी, लाइक बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। तो अगर हम स्कोप की बात करें एग्रीकल्चर से रेलेवेंट, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर टाइम में कितनी हायर पॉसिबिलिटीज है कि लाइक रिसर्च लेवल से बहुत अच्छा जो है इसमें होगा? आपके क्या व्यूज है उस रिगार्ड में कि अगर हम फ्यूचर डायरेक्शंस के हिसाब से देखें तो क्या ये एग्रीकल्चर का जो पूरा फील्ड है, चाहे इसमें जितने भी डिसिप्लिन हैं उनसे रेलेवेंट रिसर्च है, कि ऊपर जाएगा या क्या बहुत अच्छा कुछ उसमें हो सकता है? बिकॉज हम जानते हैं यूनिवर्सिटीज भी बहुत लिमिटेड है, इंस्टीट्यूट्स जो काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली दे आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड। अगर हम मेट्रो सिटीज में भी देखें तो लाइक आपको बाकी सब चीजों के रेलेवेंस में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट मिलते हैं, बट अगेन जो प्लांट पर बॉटनी पर फोकस कर रहा है वो बहुत लिमिटेड है हर जगह। तो उस रिगार्ड में आप बताएं कि फ्यूचर डायरेक्शंस में क्या, अगर बच्चा इसको एक एज एन एम लेकर चल रहा है कि मुझे तो अपना इसी में सेटल होना है, तो क्या ये उसके लिए एक फायदा या बेनिफिशियल साबित हो सकता है? यस, स्टार्टिंग विद द खुशबू, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्ड टू दैट? मैम, आई वुड से कि कुछ साल पहले तक इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का भी लोग बोलते थे कि स्कोप नहीं है, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड नॉट गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, डरते कि इन फ्यूचर कुछ होगा या नहीं। बट अभी वही बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड subjects and one of the most preferred fields. So I think the same goes for agriculture also कि few years down the line क्या होगा सब्जेक्ट का वो हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड अगर स्टूडेंट कुछ कर रहा है तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल कंसिडरिंग जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे कंट्री का, और नॉट जस्ट द कंट्री बट ग्लोबल सिनेरियो जो है। सो आई वुड से कि स्टूडेंट अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और अगर रिसर्च फील्ड अच्छा है, जो रिसर्च टॉपिक है वो अच्छा है, देन द स्टूडेंट शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इन माय ओपिनियन। Okay. What about Manisha? What is your opinion with regard to this? हाँ मैम, इसके रिगार्डिंग में मैं यही बोलना चाहूंगी मैम, रिसर्च आप अच्छे लैब में करो, टॉपिक कोई भी हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो। हमारे डेली बेसिस में हम जैसे हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी फूड कंज्यूम करते हैं मैम, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होता है, तो बेनिफिशियल होगा मैम आगे जाके। वही। Okay. What about Divya? Divya, आपको क्या लगता है? यस मैम, आज की जो बातें हैं मैम, देख रहे हैं हम सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड है मैम। तो मैम मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई कुछ और चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चीजें अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर को हमें एक स्पेशलाइजेशन देनी चाहिए। इससे हमें क्या होता है, क्योंकि सब चीजें हमें पता है एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड होती हैं। सब चीज जितनी भी देखो, कोई भी फूड रिलेवेंट है और दूसरी रिलेवेंट है, हर चीज एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, और मैं खुद भी जाना चाहूंगी एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में मैम। बिल्कुल, अगर मुझे कहीं एग्रीकल्चर पे रिसर्च के लिए मिलेगा मैम, तो मैं वहां पर ज्वाइन करूंगी मैम। Okay, great. Yeah. What about Sachin? What is your opinion, Sachin? जैसा कि मैम सबने बताया कि एग्रीकल्चर आने वाले टाइम का अच्छा फील्ड है मैम, और रिसर्च कर सकते हैं जो भी करना चाहें इसमें। और मतलब कि जो करंटली कंडीशन है हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की, वो काफ़ी
क्रिटिकल है, और कह सकते हैं कि पहले जो होता था नेचुरल चीजें होती थी, अब हाइब्रिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मैम रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है हर चीज की, तो चीजें डिमांड में है। आराम से आप, यस मैम, वापस लोग तो अपने मैम कर roots सकते पर हैं जा ऐसा रहे हैं, कुछ। बिल्कुल। ओके ओके ओके, तो सभी के अकॉर्डिंग इट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, वापस से ऑर्गेनिक रूट्स पर लोग जा रहे हैं। जितना भी आर्टिफिशियली चीजें मूव करी हैं, बट जैसे जैसे डिसीजेस की एंड हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों की सीवियरिटी बढ़ रही है, तो अगेन वही बैक टू नेचर, सारी चीजें वापस हो रही है। Okay, okay. Thanks everyone for sharing your opinions for like this specific question. Ab, anything you want to say, that is your like stages again, yours, total yours. Anything जो भी कुछ अगर आप कहना चाहें। देखिए एक ये लाइक मैं काफी समय से सोच रही थी कि ऐसा कुछ किया जाए डेफिनेटली, क्योंकि आधे बच्चे तो फॉर्म फिल एलिजिबल है, कैपेबल है, लेकिन फॉर्म फिल करने से ही रह जाते हैं क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक नॉलेज विद दैट। फॉर्म फिल भी कर लेते हैं तो उनको पता नहीं है प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि क्लियर कट आइडिया जो है नहीं है। जो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स है लाइक CSIR, अब आप देख रहे हो एक मेंटल सेटअप भी है, आप लोगों को भी, काफी लोगों को बोला गया कि अच्छा रैंक अच्छे है, बट CSR क्लियर करके आप लोग आइए। वहां से इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन बहुत कम है। एक बच्चा अगर लाइक एग्जाम दे भी देता है, उसके बाद भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे, तो उसके लिए भी वो नल है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो डेफिनेटली आप लोगों की बातें बिल्कुल लाइक मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, थैंक्स फॉर दैट। तो डेफिनेटली लर्नर्स की भी जो एक क्वेरीज थी जो उनको बहुत समय से परेशान कर रही थी, वो सॉल्व हुई होगी। एंड कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क इन द कमेंट्स। इसके अलावा कुछ और आप लोग कहना चाहें अपनी साइड से, कुछ भी अगर आप कहना चाहें जो शायद मेरे से पूछना रह गया हो, मैं नहीं पूछ पाई हूँ, या मेरे लाइक दिमाग में नहीं आया हो कि मैं पूछूं आपसे, कुछ भी आप कहना चाहें तो प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए। खुशबू से शुरू करते हैं। खुशबू, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से। Ma'am, am I audible, ma'am? या यू आर ऑडिबल खुशबू। मैम आई वुड से टू थिंग्स। पहला ये कि स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूंगी कि वीडियोस में ये सुन के कि कट ऑफ इतना जाता है ICAR का, या मिनिमम आपको 60% या 70% लाना ही होगा, वो सब सुन के पहले ही नर्वस ना हो। जो प्रेपरेशन करना है उन्हें पूरा प्रेपरेशन करके स्मार्टली एग्जाम दे, कीपिंग इन माइंड कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जितना उन्हें आता है उतना सही से करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कट ऑफ वाज लास्ट ईयर और द प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि वो हर साल बदलता है। और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो कट ऑफ तो हर साल चेंज होता ही है, वी ऑल नो, लेकिन ICAR में बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि कट ऑफ देख के पहले से वो माइंडसेट कि मैंने 60% अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मेरा क्लियर ही नहीं होगा, या अब मैं बस तुक्के लगा देता हूँ कि 60% तक कर दूं, क्योंकि वो माइंडसेट हो जाता है लोगों का कि 70% मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्लियर कैसे होगा, तो नहीं भी आ रहा है तो तुक्के लगा देता हूँ। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच आई वुड एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू डू, कि पहले से कट ऑफ दिमाग में सेट मत करो कि इतना मुझे करना ही है तो ही मेरा क्लियर होगा। क्योंकि व्हेन आई अपीयर्ड मैंने भी यही गलती की थी। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कट ऑफ बोला गया था कि आपको मिनिमम अगर आपने 60 to 70% आ गए आपके तो श्योर शॉट हो जाएगा, उससे कम आया तो 50-50 चांसेस है। लेकिन मेरा 60% नहीं आया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा 50 to 52% करीब आया था, लेकिन मेरा आराम से निकल गया और मेरा रैंक काफी अच्छा है, 37 है, जो कि आई वुड से इज अ डिसेंट रैंक। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगी कि कट ऑफ देख के वो पहले से माइंडसेट अपना बना के ना जाए कि मुझे मिनिमम इतना अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। एंड द सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट व्हेन यू
if you clear ICAR and you want to pursue something, कि सिर्फ आपने clear कर दिया and you are expecting to get into something, वो नहीं होगा, because I have been facing the same problem. You have to be very clear in what you want to pursue research wise or otherwise. And अगर आप किसी interview के लिए जा रहे हो तो you should be prepared कि ICAR clear हो गया तो you are eligible to apply, लेकिन वो आपको बेस्ट पोजीशन में नहीं रखता है. हमेशा CSIR वालों को पहला प्रेफरेंस मिलेगा. सो दैट इज व्हेन योर नॉलेज एंड योर रिसर्च इंटरेस्ट कम्स इनटू प्ले. अगर आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या परस्यू करना है रिसर्च में, और अगर आपका उस पे नॉलेज बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि शार्प है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपका CSIR हो या मत हो. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वुड एडवाइज द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच खुशबू. एक्चुअली दिस इज द रियलिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटल मेकअप रहता है कि यस 60% इज द नेसेसिटी. अब वो चाहे आए ना आए तो गेस करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग में Yes. So cut off Yes, do ma'am. fluctuate. It's not a set criteria कि always 60% is the cut off जिस पर selection हो. तो Yes, ma'am. yes, thank you so much खुशबू for clearing all the misconceptions जो काफी सारे बच्चों को रहते हैं, actually रहते हैं. That is the truth. Okay, what about Sachin? आप Thank you, ma'am. Yeah, Sachin. मैम जैसे कि खुशबू ने बताया, काफी अच्छी बातें लगी इनकी जो उन्होंने बोला है. और मैम जैसे हम कह सकते हैं कि CSIR हमारे लिए IAS से कम नहीं है अगर एग्जाम के उससे देखा जाए तो. बिल्कुल. क्योंकि जैसे प्रायोरिटी दी जाती Okay, I guess Sachin is facing some network issue. Okay. तब तक उनका नेटवर्क सही होता है. Over to Manisha. यस मैम. मैं मैं तो- यही सजेस्ट करना. Sachin, your network is back. आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू था. Okay, continue Sachin, please continue. तो मैम मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा सबसे, जितने भी लर्नर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखो और अपना जो भी है अपना बेस्ट दो, और तुम्हारी सारी चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी. बस. Thank you, ma'am. Okay, great. Thanks, Sachin. Believe in yourself, ma'am. Yeah. Manisha, over to you. यस मैम. जैसे कि मैंने प्रॉब्लम फेस किया इंटरव्यू के टाइम पे, उनको CSIR चाहिए. ऑल्दो आई एम एलिजिबल फॉर द PhD इंटरव्यू, बट उन्होंने नहीं लिया. तो मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि जो बच्चे CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एज वेल एज साइमल्टेनियसली वो DBT, ICMR, ICAR दे सकते हैं, तो वो दे. और खुशबू ने जैसे बोला, माइंड सेटअप जो कट ऑफ होती है उसके ऊपर ना जाए, बी फोकस है, और खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. जैसे जिनकी फील्ड अच्छी, मतलब जो रेलेवेंट फील्ड में हो. और बाकी मैम CSIR करने से डिटेल में हम जाते हैं तो ICAR के लिए हो ही जाता है. बस इतना ही मैम, कि बी फोकस्ड. Be focused. Okay, Manisha, thank you so much. What about Divya, Bibu? यस मैम. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे सबने बोला कि भाई मतलब जो भी है हम कट ऑफ को देखकर चलते हैं. हमें कट ऑफ को देखकर नहीं चलना चाहिए. जितना भी हो डेडिकेशन देनी चाहिए हमें अपनी प्रिपरेशन को, और जो भी हो प्रैक्टिस करनी चाहिए. जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बेसिक क्लियर होता है. Okay. तो मैम क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस हो, और साथ में जो भी डेडिकेशन हो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करें हम, और कट ऑफ पर फोकस ना करके स्टडी को फोकस किया जाए बस. Study पर focus and खुद पर भी focus, positivity. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, Divya. Yes. Thank you so much. Okay. Yes. So एक मीटिंग को कंपाइल करते हैं हम लोग, एवरीवन. सबसे पहले तो मतलब सीरियसली तहे दिल से मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. आप लोगों ने जो किया, क्योंकि मेरा तो क्या है कि बहुत कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है कि बच्चा परेशान ना हो. एक फ्री लर्निंग वाला जो सिनेरियो है, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि उनको काफी जगह ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. सबके अलग अलग मेंटल सेटअप्स हैं. बच्चा एट लास्ट कंफ्यूज हो जाता है. लेकिन जिसने ये चीजें एक्सपीरियंस की है वही रियलिटी बता सकता है. जैसे आप लोगों ने ऐसी रियलिटी बताई है, शेयर की है, जो कि शायद हो सकता है कहीं पर लिखी भी नहीं हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कट ऑफ का भी हमेशा सिनेरियो
60 to 70% लिखा होता, जितना मैंने भी देखा ICR के नेट के रिगार्ड में। दैट इज वन थिंग। डिसिप्लिन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि कौन कहाँ एलिजिबल है, कहाँ नहीं है, वो चीजें भी नहीं पता। तो मतलब आप लोगों ने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है अपना प्रीशियस टाइम देकर, उसका लाइक मैं क्या कहूँ कि कोई दूसरा तोड़ नहीं है, या कोई उसका मतलब एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। आपकी कही हुई बातें जो है हजारों बच्चों की लाइफ चेंज कर सकती हैं, जो कि शायद ये सोच रहे हो एग्जाम देना है नहीं देना है तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीवन। सीरियसली बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, एंड आप लोगों की थॉट्स को जानकर कितना मतलब हर कोने में बैठा एक इंसान इतने अच्छे थॉट्स रखता है, एंड यू गाइज आर फाइटिंग फॉर योर फ्यूचर एंड इवेंचुअली आई गेस प्रिपेयरिंग फॉर CSI नेट आल्सो। एंड डेफिनेटली जल्दी से आप और एग्जाम्स भी क्लियर करें। आप लोगों के जैसे मेंटोर्स तो बच्चों को मिलना एक सौभाग्य की बात होगी, मतलब एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, जो कि काफी लाइफ में जो है वो चेंजेस ला सकता है। यस, ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं अपन लोग जल्दी। एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. या थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम, एंड Thank you, अगेन तहे दिल से मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स। पूजा का नेटवर्क इज बैक। पूजा, डू यू वांट टू से समथिंग? Pooja, your network is back. Please take care of yourself. मतलब आप I guess महाराष्ट्र से है ना? Please take care of yourself. बहुत ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है महाराष्ट्र हाँ में। मैम, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कोरोना केसेस है, बहुत पेंडेमिक हो रहा है। एग्जैक्टली। ओके, तो पूजा आपसे लास्ट में एक जान लेते हैं। पूजा, कुछ भी कहना चाहोगे आप बच्चों को? आपकी जो बातें हैं ना वो हजारों बच्चों तक पहुंचेगी, हजारों बच्चों तक। एंड ये मौका हमें बहुत बार नहीं मिलता, कभी कभी लाइफ में मिलता है कि हम अपने थॉट्स को कन्वे कर सके। एंड इफ यू हैव द पावर, वो पावर किसी को जाकर हिट करती है, उसकी लाइफ चेंज होती है, उसके साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ चेंज होती है। तो कुछ भी पूजा आप कहना चाहें तो प्लीज कहिए। एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग। मैम, क्या होता है कि हम कई बार एग्जाम देते हैं तो हम सक्सेस नहीं होता, हम काफी फेलियर फेस करते हैं, तो हमें उस चीज से डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली में मैम मैंने कई बार किया, हमारे पेरेंट्स का काफी सपोर्ट होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक बार हमारा नहीं हुआ क्लियर, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, मगर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्लियर होगा, क्योंकि हम अपने फेलियर से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं मैम। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हमने एग्जाम दिए थे मैम, मैंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। जब ये क्लियर हुआ तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हम सारे जो भी एग्जाम्स हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती कर दी, हमारा कहाँ वो रह गया। हम उसे अच्छे से लर्न करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके हम सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं मैम। ओके, वही बात हो गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बस आगे बढ़ते चलो एंड अपने सपनों को सच करते चलो। दैट इज द मेन थिंग। ओके, थैंक यू सो मच Yes. पूजा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। चलिए एवरीवन, फिर मिलते हैं अपन लोग जल्दी, होपफुली अपने नेक्स्ट CSR के मीटअप में। आप लोग भी डेफिनेटली मुझे दिखेंगे एक एक छोटे छोटे कॉलम्स में, है ना? एंड अपने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करेंगे आने वाले अपने जूनियर्स के लिए और लर्नर्स के लिए। Thank you once again, everyone. Have a good day. See you soon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Please take care Thank of you, ma'am. yourself, all of you. You too, ma'am. Yeah. Thank you, Kushbu. Thank you so much. Okay, everyone. Thank you. Thank Take care. Okay. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am.